कमाल जोरदार तालियों के साथ विनय यादव जी का हम स्वागत करेंगे। असिस्टेंट कोच विनय यादव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियां का फिर से हो जाए सभी डिग्निटरीज के लिए। एज मनिंदर बिस्ला जी was busy in India English series, so we have Vinay ji here on behalf of him. Well, now let's welcome Miss Akshara on the top. Well, she will be joining us. She's on the way and soon she's gonna join us. Well, फिर से डबल लेयर का धमाका आने वाला है, होने वाला है in the field of grammar, grace and beauty. So everyone, I would request to take your seats. It's for gracing us with their honorable presence. I would like to call the ushers for the felicitation ceremony. Well, now, सबसे पहले I would like to call Mr. Manoj Tiwari to please come forward and accept our token of gratitude towards you, sir. Well, I know कि इन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं, पूरा भारतवर्ष तिवारी जी को जानता है। पर first, he is not just a name; he is a phenomenon, a superstar of Bhojpuri cinema, an iconic singer, and now a distinguished leader in politics. And this year as well, he takes on the exciting role as the captain of Bhojpuri Dabang. So, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए तिवारी जी के लिए। Come on everybody, जोरदार तालियां, तालियों की गूंज मेरे कानों तक अभी तक पड़ नहीं रही। Come on everybody. Well, next मैं आगे बुलाना चाहूंगी मिस्टर रवि किशन जी को। So please आगे आइए and accept the token of gratitude and honor from our end. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence. Come on, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Come on everybody, जोरदार तालियां हो जाए। Well, he is the mega star of Bhojpuri cinema and recently आपने इन्हें लापता लेडीज में भी देखा होगा, जो कि ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। So sir is an all-rounder of course. OTT platform हो, Bollywood हो, politics हो या Bhojpuri cinema हो, he is in all, each and everything. Well, he is an inspiration for all of us. तो चलिए नेक्स्ट मैं आगे बुलाना चाहूंगी सुशील शर्मा जी को। So please sir आप आगे आइए to accept the token of gratitude. Come on everybody, जोरदार तालियां हो जाए। Come on, applause for our co-founder and director. Well, a bit about his introduction I would like to give. He is a chart strategist with over 15 years of experience across multiple industries like real estate, sales, marketing, and IT staff. And he has held key leadership roles, including managing director at Chaotic Services and president of sales and marketing at Digital Hub Solutions. And with his fresh ideas, creativity, and the approach, he is playing a big and key role in Bharat Rising. So, come on, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Sharma once again. Well, next मैं आगे बुलाना चाहूंगी मिस्टर कनिष्क शील जी को। So sir, please आप आगे आइए for accepting the token of gratitude and introduction भी मैं देना चाहूंगी मिस्टर शील का। Mr. शील is a seasoned entrepreneur with 18 years of experience across different industries like marketing, sports, and business development. But at his core, he has always been passionate about sports that led him to co-found Bunker Hills Private Limited. But now, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now I would like to invite and call Mr. Sushil Malik. So please come forward to accept the token of gratitude. Come on everybody, Mr. Malik के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं छोटा सा introduction देना चाहूँगी। He is a master communicator with over 14 years of experience and he is currently the Vice President at Digital Hub Solutions and Director at Chaotic Services, where he leads and manages operations smoothly. Well, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now I would like to invite Miss Pakhi forward. So please, ma'am, come on. Please accept the token of gratitude and honor from our end. Thank you so much for gracing us with your beautiful presence. Well, it means a lot to us. And also, इनका भी introduction जो है, I would like to give. Well, she owns the millions and billions of hearts of Indians and many people. Well, अपनी presence in the Bhojpuri cinema or be it Bollywood, she has owned billions and millions of hearts, and she is not just an individual, she is an icon for the youth of the country. So एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम इस पाखी का क्लैपिंग करेंगे, स्वागत करेंगे एक बार फिर से।
Come on, let's have applauses for Miss Paki. Well, next, वेल चलिए अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी विनय यादव जी को। सर प्लीज आप आगे आइए। वेल विनय यादव जी हमसे लास्ट 1 साल से जुड़े हुए हैं एंड इनके नेतृत्व में लास्ट 1 महीने से भोजपुरी दबंग टीम की जो प्रैक्टिस है वो जोरों शोरों से चल रही है। तो यू कैन जस्ट एंटिसिपेट कि कितना अमेजिंग एंड एक्साइटिंग एनर्जेटिक ये सीजन होने वाला है। Come on everybody, जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर विनय यादव जी के लिए। Thank you so much sir for gracing us with your presence. Well, once again to each and every delegate, each and every celebrity, thank you so much. क्या अंग्रेजी में बोल रहे, हिंदी में बोलो। जी जैसा कि सर ने बोला है, सर की रिक्वेस्ट है कि स्विच करना है अब हिंदी में, तो चलिए अपनी मातृभाषा दी लैंग्वेज ऑफ इनोवेशन, द लैंग्वेज ऑफ इमोशन के साथ जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उमंग है, नया जुनून है, नया जोश है। वेल सारी टीम हमारे सामने है, सारे सेलिब्रिटीज हमारे सामने हैं। वेल बहुत ही खास और स्पेशल मौका है हम सभी के लिए। एक नए सीजन के साथ, एक नए थ्रिल के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई जर्सी के साथ, एक नई लेगेसी, एक नई कहानी भी स्टेडियम में क्रिकेट के थ्रू लिखी जाने वाली है। तो तैयार हो जाइए उसके लिए। वेल अब सभी के लिए वेल I would request the ushers to please pass on the mic to our delegate. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कनिष्कशील जी के लिए है। So sir, what is so special about this season? नया सीजन है और काफ़ी प्रिपरेशन करी है। आई थिंक ये पहली बार भोजपुरी दबंग ने बहुत अच्छी डेडिकेशन दिखाई है कि पार्टिसिपेट फॉर एक पूरे महीने की ट्रेनिंग करी है सारे मेंबर्स के। वो सबके चेहरों पे दिखाई दे रहा है, वो टैलेंट भी और वो फिटनेस भी। तो टीम इज प्रीटी फिट और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। आई थिंक एक नई चीज़ जो हमने इस साल थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है, टू प्रिपेयर नॉट टू प्रिपेयर जस्ट एक्स्ट्रा मसाला विद अस एंड a kind of respect to our family members that the entire team this year is going to wear the jersey with their mother's name instead of their own name, which I think a good respect to our mothers, and I think this will definitely push us more, motivate more to win and lift the cup this year. Thank you. Thank you so much sir for gracing us with your words of wisdom. अब next question, next सवाल मेरा है मिस्टर सुशील शर्मा जी के लिए। So sir, how do you foresee the coming CCL 2025, the new season, and tell us about the journey so far? Hello. This is the second year that we are hosting this CCL. Last year we acquired this. So last year we acquired this team. So this year we have 4 matches. We are hosting for the first time in India. After that we have matches in Karnataka and Sweden. So far, our team is here for the last 20 days and they are practicing. So we will lift the cup this year. And this time, Ravi Shmit, they also playing with us. So that is the new thing that we have in our team. And it is boosting our confidence as well. That two reasons to be there. And they will be a part of our team. So it feels great. Looking forward for the good journey with them and wish them all the best and looking forward for it. Thank you so much sir for your inspiring words. We are looking forward to a wonderful and grateful journey ahead for CCL and Bhojpuri Dabang's of course. अब अगला सवाल मेरा मलिक जी के लिए है। So sir, as you are hosting the event for the first time, especially दिल्ली में ये event जो है वो for first time है। So आपका क्या कहना है? What are your expectations from this event? From especially the CCL and the new season
So it is very special for us and we'll do good. And in the foreign matches also we'll do good and try and lift the cup. Thank you so much Malik ji for your words of wisdom. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों co-founders and directors के लिए. Come on everybody, जोरदार तालियां. Well, the much awaited. अब अगला क्वेश्चन मेरा मनोज जी के लिए है. So sir, आप इस बार भी कैप्टन हैं. So एज ए कैप्टन क्या आपके जो प्लान्स है, कैसे आप निर्देशन करने वाले हैं अपनी न्यू टीम का? जी, इस बार मेरी कप्तानी थोड़ी खतरे में है क्योंकि दाहिने तरफ मेरे हमारे सीनियर बैठे हैं, तो उनके सामने हम कप्तान कहने में बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब छिन जाए. बट इस बार हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम और रवि किशन हम लोग साथ साथ टॉस करेंगे, साथ साथ डिसीजन लेंगे और साथ साथ रणनीति बनाएंगे. तो एक ही मनोज तिवारी था बहुत भारी, अब ऊपर से आ गए रवि किशन तो फिर की आड़ी. तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया और हम लोग जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं ओनर्स को कि हम दोनों एक साथ हम लोगों का कप्तान का पद होगा और वाइस कैप्टन हमारा दिनेश लाल यादव निरहुआ होंगे. इस बार के सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पवन सिंह भी शामिल होंगे और जी ये भी बहुत बड़ा एक आप सबके लिए गुड न्यूज़ है. और देखिए CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग इस समय देश में जितने ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो क्रिकेट नहीं खेलने वाले क्रिकेट खेलते हैं, हम सभी एक्टर्स हैं और इसका नियम ही है कि जो 3 फिल्मों का लीड हीरो होगा वही खेल सकता है या फिर 5 फिल्मों में सेकंड लीड होगा वो खेल सकता है. लीड का मतलब वो नेगेटिव लीड भी हो सकता है और वो जो हीरो बोलते हैं वो भी हो सकता है. तो इतना टफ है. कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भैया बड़ा अच्छा CCL होता है हम लोग के खिला देता तो कि तू क्या करेगा, तो पता चला बिल्डिंग बनाई ना. तो उसमें पता चलता है कि इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग ओनली दोज प्लेयर्स कैन प्ले हु आर सुपरस्टार्स, सेलिब्रिटीज का नाम ही है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग. और इस देश में हमारे मेन क्रिकेट के अलावे आजकल वेटरन्स क्रिकेट हो रहा है, आप देखते होंगे पहले के सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं. उसके बाद अभी तो हर स्टेट की अपनी अपनी प्रीमियर लीग होने लगी है, लेकिन हमारी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो कहते हैं कि TRP में पूरे देश में IPL के बाद हमारे CCL की ही TRP. हम लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, हम लोगों के पिछले सीजन में लास्ट सीजन में हम लोग 3 बिलियन तक देखे गए, 3 बिलियन व्यूज आए हम लोग के CCL के. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और इस बार अच्छी बात ये हुई है कि फर्स्ट टाइम हम 11 साल से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं, मगर पहली बार हमारी टीम दिल्ली में मैच कर रही है. दिल्ली वेन्यू है, दिल्ली हमारा वेन्यू है, भोजपुरी दबंग्स का वेन्यू. तो वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली में पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं, तो वही अट्रैक्शन था. और आई वांट टू थैंक भोजपुरी दबंग ओनर्स कनिष्ठ सिंह जी, सुशील शर्मा जी, सुशील मलिक जी, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि ये टूर्नामेंट दिल्ली में होगा. तो दिल्ली के उन सभी लोगों के लिए जो भोजपुरी को सपोर्ट करते हैं, भोजपुरी दबंग्स को सपोर्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उनके लिए उनके घर में पहली बार हो रहा है ये टूर्नामेंट 9 फरवरी को. और जो लोग मुंबई हीरोज को सपोर्ट करते हैं, सलमान खान की टीम को, उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका होगा. लोगों ने सलमान के, सोहेल के खेल, सुनील शेट्टी के अलग अलग ढंग से देखे हैं,
साकिब के, तो अब उनको दिल्ली में देखने को मौका मिलेगा। इसके साथ साथ दो और टीम हमारे यहाँ खेल रही है, पंजाब की टीम और बंगाल की टीम। अब आप सोचिए, पंजाब की टीम दिल्ली में खेले, इससे बड़ा पंजाब के लोगों को खुशी क्या हो सकती है। तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। और हमारी टीम, हम लोग एक बार सेमीफाइनल में जा करके रुक गए थे, एक बार हम फाइनल में पहुंचे थे। और फाइनल में ऐसे नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल में आखिरी बॉल पे हमें 5 रन चाहिए था, छक्का मार के ही जीत सकते थे और छक्का मार दिए। तो हमारी भोजपुरी दबंग का बहुत, हम लोगों के नाम से सीसीएल की बाकी टीमें थोड़ा घबराती हैं। और इस बार विनय जी हमारे कोच है, और हमारे जो चीफ कोच वैसला जी, आजकल वो इंटरनेशनल मैचेस की कमेंट्री करने लगे हरियाणवी में, तो हम लोग उनको मैच में देखेंगे। और इस साल का सबसे बड़ा न्यूज है कि रवि किशन हर मैच में रहेंगे। ये बहुत बड़ा वाला न्यूज है। अभी हम लोग संसद छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। और दूसरी बात की एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारी भोजपुरी दबंग्स के इस ईयर के, इस सीजन के हमारे टाइटल स्पॉन्सर दिल्ली की ये कंपनी ईबिक्स, जो आप देख रहे हैं, ईबिक्स, EBIX, ईबिक्स 823, ये सीसीएल के टाइटल स्पॉन्सर सीसीएल के, और ईबिक्स हमारे भोजपुरी दबंग्स की टाइटल स्पॉन्सर है। और काम तो उनका पूरे दुनिया में है, मगर वो भी रहने वाले दिल्ली के हैं। ये भी एक बहुत स्वागत करने वाली बात है। हम ईबिक्स टीम को और उनके ओनर्स को बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भोजपुरी दबंग से सीसीएल में जुड़े, आपकी यात्रा और भी बड़ी हो, ये हमारी शुभकामना है। और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक रवि किशन जी दबंग। बच्चा आप अनाउंस करिए अगर नहीं करता। जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए। वेल, जरूर एंड फॉर श्योर ये जो सीजन है, सीजन 11 ऑफ भोजपुरी दबंग्स एंड सीसीएल ऑफ कोर्स, वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाने वाली है, बहुत मजेदारी। तो मेरा अगला सवाल रवि जी के लिए है। सो सर, आप एक एक्टर भी हैं, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप लाइक काफी चीजों में इन्वॉल्व है एक साथ, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज इट ऑल? आप सारी चीजें एज एन ऑल राउंडर कैसे कर लेते हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। और मैं कैसे करता हूँ ये तो महादेव जानते हैं, बट इसका जवाब ही नहीं आता मेरे पास। क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि कैसे करते हो। शायद मेरे पास कुछ था नहीं जीवन में, इसीलिए मैं मनोज बाबू, सब लोग बहुत नीचे गरीबी से आए, तो हम लोगों के पास कुछ था नहीं, मिट्टी का घर था, पहचान नहीं थी। और जब ईश्वर ने, देश की जनता ने प्यार दिया, तो फिर उसमें फिर ये मौका नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी और मैं करता गया, तो मेरा शरीर अब उसका आदी बन चुका है। और मुझे आई कैन वर्क बिकॉज आई हैव डन, दे नो माई हिस्ट्री। आई वर्क 5 shifts in a day, I work 4 shifts in a day। मैंने बहुत आई डोंट नो व्हाट, बट एक मैडनेस है मुझे, वो क्या कहूँ, बाकी मैं पैशन कहूँ, दीवानगी है, कुछ तो है ऐसा कुछ। मैं शिव की कृपा कहता हूँ भैया मैम, बस। बट थैंक यू। आप मुझे देश की जनता इतना प्यार करती है और इतना प्यार दी है, जो मुझे 34 सालों से आप लोग सिनेमा में 750 से ज़्यादा फिल्में अनगिनत, और अभी तक लापता लेडीज, मामला लीगल है, सिंघम और ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्मों में प्यार दिया, ऑस्कर तक
भोजपुरी ऑस्कर तक पहुंच गई बा। एकरा से बेहतर का हुई कि एगो भोजपुरी के जगह के बड़ा ओछी नज़र से लोग देखत रहे। ये भोजपुरिया नहीं बाड़ा, भोजपुरिया लोग क्या करिए, ये भोजपुरिया कलाकार बा, एगो स्टैम्प, एगो बहुत जैसे डाउन मार्केट, यू नो, सो कॉल्ड डाउन मार्केट दिखते थे। आज वही भोजपुरी कलाकार के जो हमार पहचान बा, जो हमनी के पहचान बा, वो ऑस्कर तक पहुंच गई। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट महादेव दिए। इससे बड़ा मतलब एक ड्रीम होता है कलाकार का कि वो नेशनल अवार्ड ले या फिल्म फेयर अवार्ड ले। ऑस्कर में जाना पूरे वर्ल्ड के कलाकारों का, विश्व के कलाकारों का ड्रीम होता है, और मैं ऑस्कर में नॉमिनेशन तक पहुंच गया। एक बहुत बड़ी कृपा है, बट उसके लिए मैं किरण राव और आमिर खान को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर आपके शब्दों के लिए। चलिए अब अगला सवाल मेरा पांखी जी से है। सो अरे नहीं, सीजीएल के बारे में तुम कुछ ही नहीं अलग है भाई। सर द स्टेज इज योर। नहीं बेटा, नहीं बेटा, जानते हैं क्रिकेट जानते हैं। पहले तो मनोज बाबू को दिल से धन्यवाद, और हमारी भोजपुरिया दबंग टीम के ओनर्स को, तीनों त्रिदेव को भी धन्यवाद, यादव जी को भी धन्यवाद जो ट्रेनर है हमारे। पूरी टीम मेरे शानदार सुपरस्टार, सब काला काला चश्मा पहन के बड़े हॉट लुकिंग लड़के बैठे हैं वहाँ पे। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। हमारी गुड़िया, हमारी मनोज तिवारी बाबू की धर्मपत्नी, उनकी शक्तियाँ, ये जो कुछ है उन्हीं की बदौलत है। उनको शुभी जी को एक साधुवाद है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। मनोज बाबू ने डिटेल में बता दिया, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। ये टाइम पे जो हमको खबर मिली है, भले मैं नहीं प्रैक्टिस में, हम दोनों चुनाव में व्यस्त थे, जिम्मेदारियां हम लोगों पर बहुत ज़्यादा थी इस वक्त दिल्ली चुनाव में, लेकिन इतना पता था कि मेरी टीम, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो जितनी भी टीम है उनको भी खबर आई है कि हमारे बॉयज़ हैं जो फैंटास्टिक एंड दे आर फैंटास्टिक बिकॉज दे आर क्रेजी प्लेयर्स। ये लोग they know the technique also, they have the aggression, that भोजपुरी aggression तो बहुत खतरनाक होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, उससे सब लोग डरते हैं। जैसा हम लोग से, जैसा मेरे सामने भी परफॉर्म करने के लिए लोग सोचते हैं ना, कोई भी मैं कोई भी डिलीवरी शॉर्ट डायलॉग्स में कर देता हूँ, हम लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वैसे ये सारे लड़के जितने मेरे हैं बड़े खतरनाक हैं, और इस टाइम पे ये मैच बहुत शानदार होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कहें कि पूरा भोजपुरिया समाज 8 तारीख के हमने एजा चुनाव जीता, और फिर बाद वो जश्न 9 तारीख के महादेव जी हैं, तो एगो बहुत बड़ा जश्न हुई ग्राउंड में, पूरा समाज उतरी, और पूरे समाज को अभी से निहोरा, और अभी से आप लोगों का जितने भी लोग हैं, आप लोग वो जीत के जश्न का दिन लेके आप लोग 9 को ग्राउंड पे आइएगा, जहाँ पे यही भोजपुरिया समाज, यह पूर्वांचलिया समाज खेली, और बहुत शानदार मैच होगा। सलमान खान टीम टू ऑल माय फ्रेंड्स इन साउथ, हम तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा भी करते हैं, मेरे सारे मित्र भी हैं, पंजाब इंडस्ट्री भी आएगी, तो सारे लोग के फैंस आएंगे, सारे सुपरस्टार्स वहाँ ग्राउंड पे होंगे, सारे सितारे दिल्ली के ज़मीन पर होंगे, और ये बहुत ही शानदार होगा। आप लोगों का स्वागत है, मीडिया बंधुओं का भी स्वागत है, आप लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि मजाक बहुत होता है हम दोनों का, आप लोग तो जान ही रहे हो हम दोनों कैसे हैं। अभी हम लोग थोड़ा संयम में हैं, क्योंकि बड़ा हमने इनको गाड़ी में कहा कि थोड़ा लेस बिहेव, ओके, सो वी आर बिहेविंग। Today I told you, we have to behave yourself, and you have to respect me, and I'm going to respect you too. So we both are behaving, but in ground हम लोग behave नहीं करेंगे। अगर ये कोई गलती करिए, हम इनके ना छोड़ो, हम करें तो इन्हों ना छोड़ो। हम ये पूछना चाहते हैं ना कि जब 11 बनाना होगा, तो उसमें कैसे हम लोग काम करें 11? अरे यार फिर वायरल हो जाएगी, हम कुछ बोली लो, बड़ा डेरा के रही ला। 11 तो बनावे के पड़ी ना भाई। अरे अब हमके मत फंसावा, लंबा हो जाएगा, अपने को मीटिंग में भी जाना है, नहीं तो हम पगला दे सकते ये हैं। जरूरी है कि हम लोग का 11 कैसे बने। हम लोग अभी तो हम लोग की टीम कितने लोगों की टीम है? 15, we are 15 right? 15 लोगों की टीम है, और 7-8 तो मंगनी के भी आएंगे, जो भी नहीं शामिल है वो सब भी जान नहीं छोड़ेंगे। तो 11 कैसे बनाया जाए? छांटल जाएगी। ऐसे तो ये लोग तो एकदम भूखा बंगाली टाइप यही ताक रहा है कि हम लोग पूरा मेहनत की, हम लोग का छटनी ना हो। आधा तो ज़्यादा पुष्पा टाइप के सब हो गए, कुछ लोग हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो दाढ़ी मूंछ बढ़ा के, तो ऐसा लग रहा है खाना पीना मिल ही नहीं रहा भोजपुरिया दबंग।
नहीं, लेकिन इसी होटल में रुके हो भाई, शानदार तरीके से स्वागत बात। नहीं, एक बार हम लोग अगर इससे पहले कि हम पाकी के पास जाएं, क्या हम अपनी टीम को बुला सकते हैं सामने? यस प्लीज, आप लोग हमारे शानदार स्टेज का स्वागत है। और सुपरस्टार द भोजपुरिया दबंग, प्लीज वेलकम, एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्रवेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, वाह, विक्रांत सिंह, आदित्य खुश हो, वाह, आदित्य आ गए, उदय तिवारी, अरे वाह वाह, आशुतोष, अंशुमन सिंह, अयाज बाबू भाई, अयाज खान, और सुधीर सिंह कहाँ गया? आ गया। मनमोहन, और एक हमारा खिलाड़ी पहले पंजाब में खेलता था, भोजपुरी में आया है, राजीव ऋषि। रोहित सिंह, कुणाल सिंह, वैभव राय, विकास सिंह वीरप्पन, और हमारे शक्ति जी ट्रेनर, और हमारे डॉक्टर नीरज। हम लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब लोग खड़े रहेंगे। रवि भाई बैठो। और ये बैठो सुशील जी, हाँ कुछ लोग इधर बैलेंस करो। और दोस्तों, ये जो टीम, कोई रन तो नहीं गया भाई, ये हमारी टीम है जिसके बल पे हम लोग इस साल दिनेश लाल यादव आज महाकुंभ नहा रहे हैं पूरी टीम के लिए। तो दिनेश लाल यादव और हमारी ब्रांड एम्बेसडर आम्रपाली दुबे, बाकी हेगड़े जी यहाँ पे हैं, और ये हमारी टीम है। और हम इसके पहले कि हम माइक और कहीं जाए, हम बाकी जी के पास और रवि जी और कुछ इसमें रायता फैलाएं। इसके पहले हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हम स्पेशली जो इबिक्स, जिसने हमारा टाइटल स्पॉन्सर बनी है, उसके लिए हम एक बार तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमेशा स्पॉन्सर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड इबिक्स का भोजपुरी दबंग्स के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में बहुत स्वागत करते हैं भाई विकास जी, भाई विक्रांत जी। और अब आप पाकी जी के पास चलिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, मेरा अगला सवाल पाकी जी के लिए है। सो जैसे कि हमें पता है कि आप काफी लंबे समय से भोजपुरी दबंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्या चेंजेस अभी तक आपने नोटिस किए हैं? हेलो एवरीवन। जब हमने शुरू किया था क्रिकेट, तो गली क्रिकेट से शुरू किया था, और फिर हमको खबर मिली कि CCL हो रहा है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो हम सब जो एक प्लेयर्स को, जो हमारे स्टार्स थे, उनको इकट्ठा करके हम लोग जब उनको कोचिंग देना शुरू किए, तो अल्टीमेटली समझ में आया कि बहुत अच्छी टीम बन रही है। और उसमें अंडर द कैप्टनसी ऑफ हमारे मनोज तिवारी जी, इन्होंने टीम को इस तरीके से अच्छा रूप दिया। और फिर जब रवि जी ने उसमें आके अपनी स्पेशल टिप देकर इस टीम को एक प्रोफेशनल टीम बनाई, और अंडर द लीडरशिप ऑफ मनविंदर बिस्ला जी, इस टीम को एक जो प्रोफेशनल टच चाहिए था वो मिला। लेकिन हमारी टीम बनने के बाद भी हमारी टीम में कुछ चीजें मिसिंग थी, और वो था एक सबसे
क्रिकेटर्स नहीं रहे हैं, वो अच्छे एक्टर्स रहे हैं। तो जब स्टार प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लग जाता है तो उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर टीम प्लेयर्स। भोजपुरी दबंग्स में जितने भी हमारे चुने गए प्लेयर्स हैं, वो सभी लोग बहुत अच्छे लेवल पे अपनी क्रिकेट अब खेल के तैयार है CCL 2025 का कप जीतने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के माध्यम से सभी को ये पता चले कि 9 फरवरी को ये मैच होने जा रही है अरुण जेटली स्टेडियम में। आप लोग जरूर ये वर्ड फैलाएं और मैच के लिए जरूर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। One minute, ma'am. I want to thank all the sponsors जितने नाम डिबेट्स टू many names I've seen. मैं सबको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। Many more are going to join. अभी और सारे sponsors आएंगे. We have to give them on pad and back, chest पे भी, corner hand पे भी है, पैर पे भी है. And शाम को सबका एक फोटो सेशन होगा मनोज बाबू के घर पर. So all the players are invited. He is invited for the जीतने के पहले ही आपको एक पार्टी दी जाएगी. पता है कि आप लोग जीतना है. ये हमारे कैप्टन का पहला निर्णय है. Yes, so all of you invited for the dinner. Thank you. तो हम लोग अब निकलना है चूँकि we have to go. हाँ भैया अरे बातों में एक बात रह गई। क्षमा। टीम बनेगी कैसे, लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो कैसे, वो एक बातों में बात रहेगी। आज फाइनल कर दो सर। नहीं पता नहीं क्यों मेरे से कोच कह रहे थे मैं बनाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा कि वो बना पाएंगे। तो एक छोटा सा दादा सा क्वेश्चन था। मेरे कपिल शर्मा शो बनता है। मैं चाहता हूँ उसके पहले मनोज बाबू मीडिया के कुछ प्रश्न जी, अब हम लोग थोड़ा सवाल आप लोग का लेना चाहते हैं। माइक मैम मीडिया के पास दे दीजिए। एक माइक प्लीज। एक माइक मैम वहाँ मीडिया को दे दीजिए। मीडिया क्वेश्चन से पहले जो मेन मौका है, जो मेन जड़ी है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी रिवील कर लेते हैं। सबसे पहले से ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर, फुल टाइट फॉर योर हार्ट। और वो है आज ये है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जर्सी रिवील का टाइम आ चुका है। भोजपुरी दबंग की ऑफिशियल जर्सी रिवील। सो ये सिर्फ जर्सी नहीं है, ये जोश है, उमंग है, जुनून है भोजपुरी दबंग का। और एक असली जर्सी बनी है। Well, as sir said, it's the first time ever in India कि the jersey's name is our mother's name. So come on, जोरदार तालियों के साथ और कहा बहुत ही ज़्यादा खास मौका है हम सभी के लिए, क्योंकि एक असली जर्सी बनी है जो अपनी टीम को जोश के रंग से भर दे। और यही जर्सी एक नई कहानी, एक नई लेगेसी लिखने वाली है मैदान में। सारे प्लेयर्स के पीठ के पीछे जो लिखा रहेगा वो हमारी मां का नाम होगा। ये इसकी सुंदरता। हमारे रवि भाई रवि किशन जी की माता जी का नाम जड़ावती देवी, और ये पूरा सीजन उसी नाम से खेलेंगे। बीच बीच में हम देखेंगे दूसरी जर्सी पे कैसे लोग उसके साथ एक छोटा सा ऐड है। और हमारी माता और मनोज बाबू की माता जी का नाम ललिता जी है और पीछे मनोज लिखा। और ये बहुत मैं इसके लिए बधाई देता हूँ हमारी टीम के ओनर्स को। थैंक यू सो मच। दिस इज वेरी टचिंग, वेरी वेरी टचिंग, वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। Well, thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, each and every one of you. एक बार फिर से कि आप सभी अपना कीमती वक्त दिनेश बाबू के माता जी का नाम है प्रवेश दिनेश, दोनों भाई हैं। उनकी माता जी का नाम चंद्र ज्योति है। चंद्र ज्योति जी उनका नाम है, उनकी माता जी का नाम। तो दिनेश लाल यादव नेरुला और उनके भाई प्रवेश लाल यादव हमारे साथ हमारे
चंद्र ज्योति जी हैं, चंद्र ज्योति। So, हमारे एंशियंट टाइम में ही पहले से ही हमारे ग्रंथों पे जैसे ये बोला जाता है, मदर के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है पुत्र को, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। सो यही लेगेसी हम फिर से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कम ऑन एवरीबॉडी, इस इनिशिएटिव के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए। मनोज जी, मैं एक बात इसमें हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए आर्मी को, है मनोज जी, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए आर्मी को हमें कैमोफ्लेज ऐड करना है फॉर इंडियन आर्मी, अगर आप जैसे नोटिस करो। और तालियां everybody, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए इस पल को और भी ज़्यादा खास बनाते हैं मिलकर। काफ़ी स्पेशल घड़ी है ये हम सभी के लिए। एंड आज एक नए इतिहास का पहला पन्ना लिखा जा चुका है, जो कि सीधा स्टेडियम से घर तक जाने वाला है। So everybody, जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। और इसमें हमारी एक जो हमारे ओनर हैं गणेश के सुशील और सुशील मलिक एंड शर्मा, तो आप सबकी वाइफ आई है कि नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। कविता, अब गणेश की वाइफ आप आई हैं, प्लीज ज्वाइन। और हमारी मेहरारू भी आई, आप भी आई। आ जाओ, सबके तो नहीं, आई थिंक आपके में है। हमारी पत्नी सुनीति जी और रवि किशन जी की पत्नी भी प्रीति भी इस पूरे टूर्नामेंट में शामिल होने वाली है। और कविता, आपका भी बहुत स्वागत। कविता हमारी ओनर है। तो अब आपके सवाल हम लोग स्वागत करते हैं। सवाल से पहले एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, ये विष्णुवर्धन इंदुरी जी जो है आज हमारे साथ सम्मिलित नहीं हो पाए, वो अभी इस समय दुबई में है। और दुबई से उन्होंने ढेर सारी बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स हमारी टीम के लिए भेजे हैं। तो बहुत जोरदार तालियां हो जाए इंदुरी जी के लिए भी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हिट द फ्लोर ओपन फॉर द मीडिया एंड ऑल द जर्नलिस्ट टू टेक द क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस जो है सबसे पूछ सकते हैं। रवि किशन भैया, संतोष दुबे बोल रहा हूँ, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया से हूँ। सवाल आपसे है। पहले तो सबसे पहले मनोज भैया को थैंक्स कहूँगा इस वजह से कि इन्होंने कहा कि हिंदी में बोलो। हम 3 दिन पहले अश्विनी वैष्णव जी के साथ थे, तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में किया गया, तो बोले कि अरे यार हिंदी में ना बोलो। तो ये हिंदी को बढ़ावा देने की बात है, तो इसमें भोजपुरी भी होनी चाहिए। आप लोगों को भोजपुरी दबंग है। मेरा क्वेश्चन रवि किशन भैया ये है कि आपके कैप्टन है मनोज भैया, कैसे चलेगा? आपने कहिए की जगह कही है बातें हैं। आपने कहिए की जगह कही है कि मनोज को तो मैंने हम क्रिकेट सिखौले बनी, सांस दिए हमको खड़ा रहना लेकिन आदेश अब तो माने के पड़ी। का चलाता है, का ना मजा लेना चाहता है। कैप्टन मांग रहे हैं क्या देखा राम, मुश्किल तो देखा होगा, ये तो जान तो हम लोग का पुराना चल रहा है। मानिएगा ना कैप्टन, अंदर में करना पड़ेगा। नहीं, वो दिखाए कि समझौता इनके माने के पड़े। हमको लाना है ग्राउंड पे, तो इनको सरेंडर करना पड़ेगा, और ये जानते हैं इस बात। और तभी आनंद आए, इनको भी रस में विरोधी से पार्टी से हो गया, कौन पार्टी भैया अभी मजा देख सुना हो जाए। नहीं भैया, पत्रकार
सरकार वैसे भी सत्ता के विरोधी हो रहे हैं, तो हम लोग तो विरोधी तो ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज जी, भैया देखिए, हाँ एकदम अब हम लोग बहुत सोच समझ के आज डिसाइड किए, साथ जाएंगे टॉस करने, साथ ही डिसीजन लेंगे और 11 भी बनाएंगे बैठ के साथ। इसलिए हमें अलग करने की कोई कोशिश न करें। दौरे रहा है क्या है कौन कि दुश्मन दौरे जमा रहा है दुश्मन हमारा। हाँ, दौरे जहां रहा है जो भी है, आप ही बोल दीजिए। बहुत दिन से हम लोग को अलग करना चाहते थे, लेकिन हम लोग ठीक है, हमारा कंपटीशन तो रहता है, मगर हम आपस में एकदम बहुत मजबूत जुड़ चुके हैं। हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि हम लोग जुड़ चुके हैं, हम लोग मतलब बताओ जाए सबके कि बहुत हमनी के बढ़िया चला, बाद में फिर गड़िया में पूरे हिसाब किताब होगा राजनीति के। मनोज जी, अब सवाल आपसे एक है, आप लोगों ने जब सेलिब्रिटी लेग शुरू किया होगा, आज समझते हैं आप 8वें या 9वें एडिशन में आ गए हैं, 11वें में आ गए। क्या आपने कभी ये कल्पना की थी? और आपको बहुत कहते हैं ना, कलाकार दिलों को छूता है, आपने जो आज जर्सी के पीछे माँ को कैरी किया है, इसके लिए शायद मैं समझता हूँ कि जब तक आप लोग रहेंगे इसको पूरा देश एडमायर करेगा, ये मैं समझता हूँ। ये आपकी बात बहुत सही है और इसके लिए हम ये थॉट लाने वाले हमारे ओनर्स हैं, कनिष्क, सुशील शर्मा, सुशील मलिक। क्रेडिट गोज टू देम, हमारे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन जब हमने सुना तो बहुत इमोशनल। जब ग्राउंड में आदित्य ओझा दौड़ेगा तो उसके पीठ पे उसकी मां का आशीर्वाद, सुगंधी ओझा हो। जब उदय तिवारी दौड़ेंगे तो माधुरी तिवारी होगी, जब अंशुमन दौड़ेंगे तो मीरा सिंह होगी, जब हमारे असगर दौड़ेंगे, अयाज दौड़ेंगे, लैलू निशा, उनकी माँ का आशीर्वाद होगा। ऐसे हम इन सारे खिलाड़ियों के लिए ये इमोशनल है, और इसके लिए जो हमारी टीम ओनर्स ने सोचा है, उनको और इबिक्स, इनको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मनोज जी, एसके भारद्वाज ग्लोबल वॉइस से हूँ, आपसे प्रश्न है जी। पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि आपने पूर्वांचली को इकट्ठा करने में, तरह तरह की एक्टिविटी में आपने उसको एक स्थान दिया और लोगों को यहाँ तक खींच के लाया, बीजेपी में भी सबको जोड़ा। 8 तारीख के बाद पूर्वांचल के लोग जैसी कि अभी संभावना है, आपको देखते हैं नेतृत्व के मोड़ पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 9 फरवरी को मिलेंगे हम लोग। भैया, हम सब एक कोशिश में हैं कि हम पूरे दुनिया के पूर्वांचल को जोड़ सकें। ये जो हमारी टीम है ना, जब हम एक सलमान भाई बैठते हैं, रजनीकांत सर बैठते हैं, मोहनलाल जी बैठते हैं, उधर नागार्जुन सर बैठते हैं, उनका बेटा कैप्टन है तेलुगु का, तो हम लोग जब पूरा देश बैठता है ना, तो हम लोग एक ही बात कहते हैं कि हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी हमारे सीसीएल का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, राष्ट्रीय एकता। आज आप जानिए, जो दूसरे राज्य, तमिलनाडु के जो बड़े बड़े ये सब सुपरस्टार हैं। विक्रांत सिंह, कितना फिल्म किया आपने? 62 फिल्मों का हीरो। हमारा प्रवेश लाल यादव कितना फिल्म की? 50+ फिल्म करने, हीरो है उसके। हमसे पूछा हमारा ये तो खैर लीजेंड है, लेकिन फिर भी रवि किशन जी आपकी कितनी फिल्म हो चुकी है? 750। ये आप समझ सकते हैं, आप
आप लोगों से ज्यादा मुझे बताया गया है, आंखों में आंख डालकर बताया गया है। मनोज तिवारी 750। अब इसके अंदर कितने प्रश्न इनके दिमाग में चल रहे हैं उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, क्यों निकली ये राय। रवि सर, तो ये सभी लोग अब दूसरे क्षेत्रों के लोग हमारे बच्चों को जानते हैं और हम उनको जानते हैं। अयाज तुम कितने फिल्म किए हो? 300 फिल्म किया है अयाजवा, 300 फिल्म पे लेना। और कहाँ तुम्हारा भाई अयाज? गाजीपुर। प्रवेश की पद्धति। तो ये विकास सिंह वीरप्पन इनके नमूने पड़ गए। कितना ही वो गलगोच्छा रख के कितना फिल्म के लिए ऑर्डर हो 42 को। मैंने हम लोग वादा किए थे कोई दूसरे को छेड़ेगा। पहला मैच हम लोगों का 9 फरवरी को अरुण जेटली फिरोज शाह स्टेडियम में है और 14 तारीख को हम खेल रहे हैं मैच हैदराबाद में। 16 फरवरी को हम खेल रहे हैं उड़ीसा के कटक में और 22 तारीख को हम खेल रहे हैं गुजरात के सूरत में और 2 मार्च को हम लोग अपनी अनुसार पक्का फाइनल खेल रहे हैं। तो आप सब लोग से दुनिया भर के हे भोजपुरी के और पूर्वांचल के प्यार करने वाले लोग, फाइनल 9 तारीख के डिसाइड हुई जब दिल्ली विजय के बाद हमने की बैठक हम लोग 9 फरवरी को फाइनल का डेट सब वेन्यू बता देंगे। तो मैं समझता हूँ आज का इतना ही। आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग। मनोज तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल। मैं अजीत तिवारी, पायनियर न्यूज़पेपर से। रवि सर से एक छोटा सा सवाल ये है कि भोजपुरी दबंग के साथ साथ क्या इसका महिला संस्करण भी आने वाला है? क्या ये टीम बनेगी? जरूर, देखिए बहुत अच्छी बात और धन्यवाद इस सजेशन के लिए। महिला टीम भी हमारी सशक्त है। हमारी भोजपुरी की जितनी सुपरस्टार महिला कलाकार हैं और बहुत ऊंचे पायदान पर हैं और बड़ी पॉपुलर हैं, जितने हम लोग पॉपुलर हैं हमारी महिला कलाकार भी हमारे सिनेमा की बहुत पॉपुलर हैं और आजकल महिला प्रधान फिल्में भोजपुरी में ज़्यादा बन रही हैं। तो मैं डेफिनेटली बाकी को मैं इसका ये क्रेडिट दूंगा कि यू शुड स्टार्ट दिस और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है। जो एक बहुत अच्छे मीडिया बंधु हमारे भाई ने सवाल किया कि क्या महिलाओं की टीम आएगी भोजपुरी की, तो बहुत अच्छा सजेशन आया है मनोज बाबू, इस पर हमने तवज्जो ही नहीं दिया। आप जरूर आपकी इस बात पे गौर किया जाएगा और मुझे लगता है हमारी टीम ओनर या और भी सारे ओनर इसके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत एक्साइटमेंट होगा क्योंकि हम भोजपुरी का कमाल का क्रेज है। आप लोग को मीडिया बंधुओं को बता दूं, विश्व में सबसे ज्यादा यूट्यूब व्यूवर्स हैं भोजपुरिया, नंबर 1 है। मिलियंस एंड बिलियंस में हमारे सब फिल्में और सिंगर्स को सुना और देखा जाता है। तो हम लोग के पास बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है, बहुत ताकतवर इंडस्ट्री है जो भोजपुरी भाषा हमनी का समाज के धन्यवाद। बट यस, अगर हम लोग ऐसे आते हैं तो बहुत तूफान होगा। थैंक यू बहुत, ये आपको मैच के लिए थैंक यू। मनोज सर, रवि सर, गुड आफ्टरनून। मैं मोहित शुक्ला हूँ भारत एक्सप्रेस से। दोनों को मैंने एक साथ खेलते हुए देखा था ध्यानचंद स्टेडियम में और अच्छी बात ये थी कि आप दोनों ही फिट नजर आ रहे थे। सवाल मेरा ये है, हाँ अभी भी है, उस दिन तो और अच्छे आ रहे थे। थैंक यू सो मच। मनोज सर, रवि सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम ये सीसीएल आप कर रहे हैं, ऐसे कभी स्पीकर साहब को बताइए कि साहब एमपीस का भी एक सीरीज होना चाहिए, क्योंकि वो एक मैच था, एक मैच बहुत जल्दी ऐसा लगा निपट गया, बहुत जल्दी हो गया, तो एक सीरीज होनी चाहिए। यू स्टार्ट। अभी हम लोग एक प्रस्ताव लाए हैं कि देश का एमपी जो इंडिया में खेला हो क्रिकेट में, तो उसको भी सेलिब्रिटी क्रिकेट में शामिल किया जाना चाहिए। मगर आपने जो बात कही अच्छा सुझाव है, क्योंकि हम लोगों को भी लगा प्यास आधी लग गई, तो हम उस पर काम करेंगे।
लेकिन आप देखिए हम कॉज के लिए भी खेलते हैं। आप हमारी टी शर्ट को ध्यान से, मैं सोचता था कि कोई पूछेगा, हमारी टी शर्ट में इनके कंधे को देखिए, इस कंधे पे जो रंग है, हम लोग इस साल अपना पूरा सीसीएल भोजपुरी दबंग भारतीय सेना को समर्पित करते हैं। ये कंधे पे जो हमारा हमने टी शर्ट में ऐड किया, ये पहले नहीं था। अक्षरा जी स्वागत है आपका, आइए। हमारी एक ब्रांड एम्बेसडर अक्षरा सिंह, जो महिला जब होगी सीसीएल तो उसकी कैप्टन बनेगी। ये भी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, क्यों आइकॉन है भोजपुरी इंडस्ट्री की, एक पावरफुल पर्सनालिटी जो अब भोजपुरी दबंग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सो ऑल एवरीबॉडी पर फिर से जोरदार तालियां। ये अक्षरा का हम सब वेट भी कर रहे थे, हमारी टीम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जैसे पाकी जी तो हमारी नींव में है। पाकी के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो हमारी यूपीसी आधा घंटा और चली जाएगी। तो नींव में जब शुरुआत हुई थी तो हम लोग हमेशा के लिए पाकी हिगड़े के कर्जदार हैं कि सीसीएल को फर्स्ट टाइम खड़ा करने का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी वो जुड़ी रहती है हर तरह से। और अक्षरा सिंह बाद में ज्वाइन की, लेकिन अब ये हम लोग बनारस गए पीसी करने, वहाँ भी पहुँची, आज यहाँ भी हैं। एंड हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सीसीएल के 9 फरवरी के बारे में कुछ कहना हो तो आपको स्वागत। मध्य दीजिए सर। यहाँ पर उपस्थित जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सभी लोगों को अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम है। स्पेशली जितने यहाँ पर दिग्गज हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। इन लोगों ने अपने शब्दों से माहौल बना दिया होगा, आई एम श्योर। हम लोग तो अभी बस इनके कदमों पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, बट आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस CCL 11। आई एम सो सॉरी बिकॉज बीच में मैं कट गई थी, आ नहीं पा रही थी। बस इस बार आने का अवसर दिया मिस्टर कनिष्क जी ने, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनाया है इस बार। और आज भी आने का था नहीं, बस ऐसे कैसे घूम फिर के आ गए, पता नहीं क्या इमोशनल टॉर्चर करते हैं। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। हमेशा से मुझे लगता है कि हर किसी ने गर्दा मचाया हुआ है। हमारी सीसीएल की जो तमाम टीम यहाँ पर उपस्थित हैं पीछे, मुझे लगता है हम लोग तो आके अपना चेहरा दिखा के स्टाइल मार के कपड़ा पहन के निकल जाते हैं हल्के में। सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो इन लोगों को जाता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, जो दिन रात अपने प्रैक्टिस से, अपने मेहनत से, बिना आओ ना देखे ताऊ शूटिंग वूटिंग छोड़ छाड़ के जो लगे रहते हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू वेरी मच। और बिफोर फिनिशिंग दिस पीसी, हम आपको अपना गाना सुनाना चाहते हैं, जो हमारी फिल्म, हमारी इसका जो रवि किशन ने गाया है और सबने, और गाना शुरू ही होता है यारा नमः पार्वतीपते हर हर ओ भोजपुरी दबंग जब भरेला उमंग, भोजपुरी दबंग जब भरेला उमंग, जब मरी है के रह जाए सब दिल लपेटा और धार दिल लपेटा मार खेला, दिल लपेटा मार खेला। इसको शुरू से लगाओ, रवि किशन की आवाज से शुरू होते, एकदम शुरुआत, एकदम शुरू से, जीरो से। एकदम शुरू से एकदम
शुरू से नहीं है क्या? एक ये भी दिखा करके हम आपसे विदा लेंगे। ओके, थैंक यू सर। वन ए भी हम यहाँ पर